سندھ سرکار نے بارش سے متاثرہ اضلاع میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ بارش سے متاثرہ ہر ضلع کو 30 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت بارش کے صورتحال کے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں سندھ حکومت نے متاثرہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو امدادی کاموں کے لیے فوری طور پر 30 لاکھ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد یہ رقم جاری کر دی گئی۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بارش سے متاثرہ افراد کو راشن، ٹینٹ اور دیگر ضروریات کو پورا کیا جائے۔ بارشوں کے بعد صوبے کے انفراسٹرکچر اور زراعت کے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ پاکستان میں مانسون کی زیادہ بارشوں کا سبب کیا ہے؟ چیف میٹرولوجی سردار سرفراز نے بتا دیا۔ کہتے ہیں 3 سال میں بحر الکاہل کا درجہ حرارت معمول سے کم رہا ہے، جس سے لانینا فیس ایکٹیو ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مانسون بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان دنوں پاکستان میں مونسون کی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ سندھ ہو، پنجاب، بلوچستان یا کے پی ہر جگہ ہی بادل جم کر برس رہے ہیں۔ مونسون میں زیادہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے وجہ بتا دی۔ پیسیفک اوشین کے ٹیمپریچرز جب معمول سے زیادہ ہوں تو اس کو النینو کہا جاتا ہے، اور اگر درجہ حرارت معمول سے کم ہو تو لانینا کنڈیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر مونسون ہونے سے پہلے لانینا کنڈیشن ایکٹیو ہو تو اس دوران پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی ممالک میں اچھی بارشیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال موسم گرما کا آغاز مارچ سے ہوا اور شدت زیادہ تھی۔ زائد گرمی بھی مونسون کی شدت کو بڑھا دیتی ہے۔ اوشن کی درجہ حرارت معمول سے کم ہو تو پھر ہمارے یہاں مانسون کی اچھی بارشیں ہوتی ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں، بشمول پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان سبھی ایریاز میں۔ تو اس وقت بھی معمول سے کم چل رہے ہیں اس کے، یعنی یہ اتفاق سے پچھلے 3 سال سے بحر الکاہل کے یا پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز معمول سے کم ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ حالیہ مونسون سسٹم شدت والا ہے، اس کا 80% حصہ زمین سے گزرے گا۔ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ مونسون سسٹمز میں 60% حصہ سمندر اور 40% حصہ زمین پر ہونے کے باوجود تیز اسپیلز آئے۔ 994 ملی بار یا ہیکٹا پاسکل جو پریشر کی یونٹ ہوتی ہے، یہ اس کی ایوریج ویلیو ہے، اور اس دفعہ یہ ایوریج سے کم گئی ہے۔ پورے جولائی میں یہ اراؤنڈ 991 یا 992 رہی ہے۔ تو یہ جو ایکسیسو ہیٹ ہوتی ہے نا، یہ بھی مانسون کی اچھی بارشوں کی طرف وہ کرتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یعنی ان کو بڑھاوا دیتی ہے ایک طرح سے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں 2010 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ بہت زیادہ گرمی پڑی تھی، ریکارڈ ٹیمپریچر ہوئے تھے اس وقت بھی، تو بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، سپر فلڈ بھی جنریٹ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مونسون کا مرکز راجستھان اور مرکزی سندھ کے قریب ہے۔ سسٹم کا مرکز 8 سے 10 گھنٹے کے دوران سندھ پر آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج رات اور کل کے دن کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی شدت زیادہ ہوگی۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ اختر کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ ساتھ کاروباری افراد بھی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو گئے۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں کی بجلی بندش جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے بے حال شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر بجلی بند رہنے سے کاروبار متاثر رہتا ہے۔ نہ کام کے وقت دکان میں بجلی ہوتی ہے اور نہ آرام کے وقت گھر میں۔ لائٹ کی صورتحال بہت ابتر ہے۔ دن میں لائٹ 2 دفعہ آتی نہیں ہے، اس سے کاروبار متاثر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور بلوں میں آپ دیکھ لو کتنے ٹیکسز لگ کر آ رہے ہیں۔ اور رات کو جو ہے 8 سے 10 بجے اور 12 سے لے کر 2 بجے یعنی کہ سونے کے ٹائم، اور نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ کاروبار ہو رہا ہے۔ لائٹ یہاں پہ اتنا ڈسٹرب کر رہی ہے، بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ کام پہ آؤ لائٹ نہیں، گھر جاؤ لائٹ نہیں، اس کے بعد پانی کا پرابلم ہے ادھر۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ آباد اور نیو کراچی میں 12 گھنٹوں سے زائد کی بندش جاری ہے، جبکہ اختر کالونی، منظور کالونی، محمود آباد، چنئی سرگوٹ میں رہائشی اور کاروباری مراکز میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام نے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی تردید کر دی ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ کراچی کے صنعت کاروں نے بجلی کی نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا۔ فیڈرل بیریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر محمد ہارون شمسی کہتے ہیں کہ بجلی کی نئی قیمتوں سے صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ اس وقت جو ہمیں الیکٹرک کا یونٹ 11 روپے FCA یعنی فیول سرچارج کے ساتھ مل رہا ہے، وہ اب قابل قبول ہمیں کسی بھی صورت سے نہیں ہے، کیونکہ اب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ برداشت اس کو نہیں کر سکتی اور یہ ہماری انڈسٹری کو بند کر دے گا۔ اور یہ صرف نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ اور نقصان دہ کیا، وہ بھی اتنے 50 روپے کے حساب سے یونٹ پے کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے اب انڈسٹری چلانا یا کراچی میں رہنا۔
शहर में गैस बहरान से सभी परेशान हैं। घरेलू और सनती सार्फिन की तरह कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार हैं और सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहर में गैस बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। घरेलू और सनती सार्फिन के साथ कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार हैं। चाय नाश्ते के होटल पर काम करने वालों का कहना है कि गैस न होने से सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कारोबारी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पूरे इलाके में मेरे तकरीबन हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। 250 का 300 रुपये का पर केजी है। 250, 130, 140 रुपये ऐसे रेट रोज़ ऊपर नीचे होते हैं। गैस की लोड शेडिंग इन्होंने उठाई हुई है। लोगों को 50-50 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। गैस भी बंद है। यहाँ पूरे कश्मीर कॉलोनी में आपको गैस नहीं मिलेगा। होटल मालिकान का कहना है कि सिलेंडर्स के इस्तेमाल से लागत बढ़ने के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस बहरान का हल तलाश करें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब और KPK के वजारत से दरख्वास्त करूँगा कि कराची और सिंध की आवाम की मदद करें। हालिया बारिशों के बायस ही अली जैदी ने इमरान खान के कराची और अंदरूनी सिंध में होने वाले जलसों को मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कराची के हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा दिया। PTI रहनुमा अली जैदी बोले, बारिशों के बायस कराची और अंदरूनी सिंध में जलसा मुलतवी कर दिया। हमें इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, न नाले साफ हैं न सड़कें, हर जगह गंदगी के ढेर हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी ने कहा कि इमरान खान जैकबाबाद समेत 9 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। हमारी सिंध की पूरी तंजीम की भी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह खान साहब 9 हलकों में पाकिस्तान में जो 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान खुद उस पर कैंडिडेट हैं सारे 9 हलकों में। तो इंशाल्लाह जो 2 अक्टूबर को जैकबाबाद में इलेक्शन होगा, और आपको पता है कि मैं जैकबाबाद से एक दफ़ा 2013 में इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो मैं वहाँ की डायनामिक्स अच्छी तरह समझता हूँ। जैकबाबाद में भी इमरान खान साहब ही कैंडिडेट इंशाल्लाह होंगे। अली जैदी का मजीद कहना था कि हलीम आदिल शेख को जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, आपके मौजूदा MPA भी मुलविस हैं। तमाम जमातें मिलकर कराची में PTI का मुकाबला करने चली हैं। अली जैदी का मजीद कहना था कि NA 245 के इंतखाबात में हुक्काम बेहतर इक़दाम करें। जुल्म सहने की भी हद होती है। सिंध के वासियों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और जरदारी हमारे साथ किए गए माहदे पर अमल दरामद कराने के लिए संजीदा नज़र नहीं आते। हमें मजबूर ना किया जाए कि हुकूमत से अलहदा होने के लिए डेडलाइन दे दें। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर वफाक और सिंध हुकूमत से अलहदगी का इशारा दे दिया। कराची में NA 245 के ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान वसीम अख्तर PDM क़यादत से नाराज दिखाई दिए। बोले, PDM अपनी किसी मुआहदे का पास नहीं कर रही, जिस पर हम वजारतें छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और जरदारी हमारे साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए संजीदा नजर नहीं आते। हमें मजबूर न किया जाए कि हुकूमत से अलहदा होने के लिए डेडलाइन दे दें। तो मैं इस कैंपेन के जरिए से दोनों हुकूमतों को वाज़े करना चाहता हूं, वाज़े मैसेज देना चाहता हूं कि आपके साथ जो हमने नेक नियति से एग्रीमेंट किए थे इस कराची शहर के लिए, इसके मसाइल के हल के लिए, मुझे लगता नहीं कि आप सीरियस हो, कि आप इस शहर के मसाइल हल करना चाहते हो, इस शहर को ओन करना चाहते हो। वसीम अख्तर का कहना था कि MQM अपनी छीनी हुई सीटें वापस हासिल करेगी। PTI हो या पीपल्स पार्टी, किसी को कराची की फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी चोरी हुई सीटें, चोरी की गई सीटें इस इलेक्शन में कुछ वापस लेंगे, और आने वाले 23 के इलेक्शन में जो बचेंगी इंशाल्लाह वो वापस लेंगे। ज़मीनी इंतखाबात के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से नौरानी चौक से रैली भी निकाली गई, जिसमें गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। पार्टी परचम थामे कारकुनान ने तरानों पर नारे लगाए। रैली नौरानी सिग्नल से होती हुई लाइन जरिया जैकब लाइन, सोल्जर बाजार से मार्टन रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन फरहान के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। के मेजर जनरल अजहर वकास DG रेंजर्स से तैनात कर दिए गए। चंद रोज में नए DG रेंजर्स ओहदा संभालेंगे।
DG रेंजर्स मेजर जनरल चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार का तबादला कर दिया गया। मेजर जनरल चौधरी इफ्तिखार को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मेजर जनरल अजहर वकास नए DG रेंजर्स का ओहदा चंद रोज़ में संभालेंगे। मेजर जनरल अजहर वकास DG MI के ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेजर जनरल अजहर वकास बलोच रेजिमेंट की कमांड कर चुके हैं। बारिशों के बाद नई सब्जी मंडी सुपर हाईवे की हालत बदतरीन हो गई। बारिश के पानी की निकासी आब न होने की वजह से जगह जगह कीचड़ हो गया है। नई सब्जी मंडी ताजर रहनुमा मोहम्मद अफजल खान का कहना है कि सब्जी मंडी के व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुशीर ज़राअत ऐसे सूरत हाल पर नोटिस लें। मंडी में बारिश का पानी कीचड़ में तब्दील हो गया है। ताजर रहनुमा अफजल खान का कहना है कि सब्जी के व्यापारियों की करोड़ों का नुकसान हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये भी कहा है कि कैमरे की आंख सब कुछ दिखा रही है, पर जिम्मेदारों को कोई मसला नहीं। आपने अभी अपने कैमरे की आंख से सब कुछ खुद देखा है और ये सारी अवाम को दिखा है और ये मेरे हाल में तमाम TV चैनल्स पे ये आ रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार सरकारी अफसरान है और जो मुशीर ज़राअत है वो खरगोश की नींद सो रहा है। ताजर रहनुमा मोहम्मद अफजल ने कहा है कि न्यू सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों का 50 से 60 करोड़ रुपए का यौमी का कारोबार होता है। ये कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। 60-70 करोड़ रुपए का डेली कारोबार होता है। लोगों को अरबों रुपए नुकसान हो चुका है और ये दुनिया के कोई वर्स्ट तरीन कंट्री में भी ऐसी कोई बिजनेस मार्केट नहीं होगी जिसके अंदर पूरे एक महीने से पानी, कीचड़, बदबू और इसमें से इतनी बदबू आ रही है कि किसी गटर लाइन में से भी इतनी बदबू नहीं आ रही होगी। अफजल खान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने मसला हल ना किया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में बारिश के बाद शाहराह कादीन टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मौजूद गढ़ों और कीचड़ के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में जारी बरसात के बाद सुलझानी से डिफेंस और हॉक्सबे से गुलशन हदीद तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर के मरकजी इलाके में बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने से शुरू होने वाली सड़क भी इन दिनों बदतरीन हालत में है। अहम शाहराहों की जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहीं शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका इदारे अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कई मरतबा शिकायत की गई लेकिन कोई तवज्जो ना दी गई। ये है जल्द से जल्द हालात ठीक किए जाएं ताकि अवाम सुकून से ज़िंदगी गुजारे। ये देखें किस तरह ट्रैफिक के हालात हुए हैं, आप खुद देखें कि लोग इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग वॉक नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखें, ये कि इसका काम फौरन होना चाहिए और उसको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। इनको सफाई होनी चाहिए, गंदगी ख़त्म हो गई, ये बीमारियाँ फैल रही है, बदबू फैल रही है। सड़क तो बहुत ही हालात ख़राब हुए हुए। सड़क की अबतर हालत के सबब बड़ी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों की परेशानी भी बढ़ गई है। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। कमिश्नर कराची ने प्लास्टिक की थैलियों के फ़रोख्त और बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी 2 माह के लिए लगाई गई है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि प्लास्टिक की थैलियों के बायस बरसाती नालों और सीवरेज का निज़ाम शदीद मुतासर होता है, जिसके बायस प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल और तैयारी पर पाबंदी आयद की गई है। इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पाबंदी 2 माह के लिए 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स पुलिस के अमला खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करें। गंदम की ज़िला बंदी बदस्तूर बरकरार है, जिसके बायस शहर में आटा बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे कबल छोटी चौकी मालिकान ने भी आटा महंगा किया था। गरीब के लिए रोटी का उसूल मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद 10 किलो का थैला 1050 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुँच गया, जबकि आटे का 5 किलो का थैला 550 रुपए तक पहुँच गया। कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी को जावाज बनाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ाई हैं। ये तो कई महीने से मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि ज़िला बंदी नहीं खोलेगी और गवर्नमेंट गंदम सही मकदार में वाफिर मकदार में नहीं देते, जैसे कि आजकल बारिशों में अखबारात में आ रहा है कि जी इतना गंदम ख़राब हो गया। अगर ये मिलों को दे दिया जाए और आवाम को उसकी सहूलत होगी तो लाज़मी बात है आटा कम रेट पे आ जाएगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई उनसे 2 वक्त की रोटी भी छीन रही है। अभी 5 किलो का मतलब या 10 किलो लेके जाता था, अभी 3 किलो 4 किलो भी वो बहुत मुश्किल से। ताजरों का कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी के खात्मे से ही गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
अंदरूनी मुल्क बरसात के बायस मुर्गी की सप्लाई मुतासर होने से कीमतें बढ़ गईं। जिंदा मुर्गी 270 रुपये और गोश्त 390 से 400 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। तलब और रसद के बढ़ते फर्क के बायस मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी 30 रुपए इजाफे से 270 रुपए फी किलो हो गई, जबकि मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा होकर 390 रुपए से 400 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। चेयरमैन सिंध बलूचिस्तान होलसेलर एसोसिएशन साउथ जोन मलिक ज़रीफ का कहना था कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा आर्जी है, बारिश की वजह से मुर्गी की सप्लाई मुतासर हुई है। ख्याल ये है कि रेटों का जो बढ़ने का मसला है वो तो ये है कि फार्म के अंदर पानी जमा है। अगर 300-400 फार्म है तो उनमें से जो ना 100 फार्म जो है ना वो बेहतर हैं, उनमें गाड़ियाँ जा रही हैं जो कंट्रोल शेड है। जो ओपन की शेड है उनमें गाड़ियाँ नहीं जा रही, गाड़ियाँ तकरीबन फंस रही हैं, वहाँ कोई भेज भी नहीं रहा। तो इस वजह से थोड़ी सी ये मसनूई जो है ना वो तेज़ी है जब तक बारिशें हैं।